طلبہ علوم نبوت بالخصوص امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر دعوت برکاتم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اس وقت ہم اور آپ عالم اسلام کی اس نادر و نایاب اور عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کے فضل و کمال اور حکمت و دانائی، تقوی اور طہارت، ریاضت و مجاہدہ کی داستان آج پوری دنیا میں سنی اور سنائی جا رہی ہے، جس نے اپنے علمی روب و دبدبے سے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا اور اپنے کردار کی پاکیزہ خوشبو سے ایک عالم کو معطر اور مشکبار کیا، جسے نہ جانے کتنے القاب سے دنیا کے مختلف خطوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی انہیں نبیر اعلیٰ حضرت کہہ کر یاد کرتا ہے، کوئی انہیں جانشین مفتی اعظم ہند کہتا ہے، کوئی انہیں اپنے وقت کا عظیم محدث اور مفسر کہتا ہے، کوئی انہیں شیخ کامل اور مرشد طریقت کہتا ہے، کوئی انہیں فقیہ اعظم کہتا ہے۔ ایک ذات ہے اور اس میں نہ جانے کتنے جلوے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ایک ذات ہے جو مثل شمع ہے اور ہر طرح کے پروانے اس وقت اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں۔ علماء ہو کہ عوام، خواص ہوں، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، پروفیسر ہوں یا ماسٹر، اہل ثروت ہوں یا اہل سیاست، ایک ذات حضور تاج الشریعہ کی ایسی نظر آتی ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ بہت سے ایسے پیر آپ کو ملیں گے جس کے پاس صرف جاہلوں کا ٹولہ، اس کے علاوہ ان کے دامن میں کچھ نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس چند شاگرد اور ان کے پاس کوئی توشہ نہیں۔ ایک ایک تفصیل میں اگر جا کر کے گنوایا جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جامعۃ الرضا بریلی شریف عرب و عجم کے فضل و کمال کا ایک حسین گلدستہ بنا ہوا ہے۔ بغداد معلی سے آنے والی ذات نے اپنے خطاب میں بڑی پیاری بات کہی اور ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جانشین حضور تاج الشریعہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اسجد رضا صاحب قبلہ، حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत, अजमत अहले बैत, अजमत खुलफाए राशिदीन, अजमत खुलफाए राशिदीन, नारे हैदरी, अजमत अमीर मुआविया, अजमत अमीर मुआविया, नारे गौसिया, पाचा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी बरेलवी मुसलमान, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, हुजूर मुफस्सिर आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, जानशीन हुजूर ताजुश शरिया, आमदे सुल्तान, नूर दीने हुजूर ताजुश शरिया, परतबे फारूक आजम, हुजूर कायदे मिल्लत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, रहनुमाए दीनो मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत, उस्साम अहमद रज़ा, हुमाम अहमद रज़ा, शेर कालबी, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, उलमाए अहले सुन्नत, जमात रज़ाए मुस्तफा, जामिउतुर रज़ा, देखो देखो कौन आया। Indomitable spirit shown today. English na bouncer. Let's hear it from the boys themselves. Yes. आप हजरात अपनी जगह पे बैठ जाइए, वक्त बहुत कम है और ये स्पीकर पे से और भी हट काम जाए, ज्यादा करना है। ये स्पीकर पे से हट जाओ भाई। बैठ जाइए हजरात। जिस मरकजी शख्सियत का आपको इंतजार था, जलवे ताजुश शरिया लेकर वो जात हमारे और आपके दरमियान जलवागर है। आप इन नूर नूर चेहरों को देखकर अपनी आंखों में आसूदगी लाएं, दिलो दिमाग में ताजगी पैदा करें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत करने की ज़हमत करें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, एक जात है जिसने हर तबके को अपने दामन में समेट रखा है। अहले दुनिया हो या उलमा व अवाम, दीनदार हो या दुनियादार, हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिजवान के फजलो कमाल का हर कोई एतराफ करता हुआ नजर आता है। मैंने हुजूर ताजुश शरिया को जलवत में देखा, खलवत में देखा, उनकी निजी महफिल को देखा, उनकी इल्मी मजलिस को देखा। वो अपनी जात में एक बेमिसलो बेमिसाल शख्सियत थे। हुजूर ताजुश शरिया नाजुक से नाजुक मोड़ पर जिस तरह की दस्तगीरी फरमाते और उलमा की रहनुमाई फरमाते, वो लाजवाब है। मेरे जहन में कई एक ऐसे वाकयात हैं जो मुझे बार बार इस बात की याद दिलाते रहते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया वो सिर्फ एक आलिम नहीं, बल्कि वो रब्बे कदीर का अहले सुन्नत के लिए एक अजीम तोहफा थे। वो रसूल पाक की एक अजीम इनायत थे, गौसो ख्वाजा की करामत थे
आला हजरत के फजलो कमाल के सच्चे जानशीन और अमीन थे। एक मर्तबा मैं और शहजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना जमाल मुस्तफा साहिब कादरी मंजिल घूसी शरीफ में बैठे हुए थे और हुजूर मुहद्दिस कबीर से कुछ बातें हो रही थी। उसी दरमियान हुजूर ताजुश शरिया का जिक्र आ गया। कुछ बातें हुई। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया, अभी आप लोग ताजुश शरिया के स्टेटस को नहीं समझ पाएंगे। हुजूर ताजुश शरिया जिस मेयार पर हैं, अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ये कौन कह रहा है? जो अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, जो मुहद्दिस कबीर है, जिसके हजारों तलामिजा हिंदो बैरूने हिंद फैले हुए हैं, वो अजमत ताजुश शरिया को हमारे दिलों में इस तरह से बिठा रहा है। इसका मतलब है हुजूर ताजुश शरिया को रब्बे कदीर ने उन अजीम सिफात से नवाजा था जिसकी बुनियाद पर वो जिधर जाते लोगों के दिल खिंचते हुए चले जाते और शायर कहने पर मजबूर होता, इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चराग, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की अजमतों का एतराफ सिर्फ उनके मुरीदीन, मुतक़िदीन और मुहिब्बीन ही नहीं करते हैं, बल्कि गैर में किसी गैर से समझौता हूं फिर उस पर वो कायम रहे। इस नहीं कि मुझे कौन क्या कहेगा, किन जुमलों से नवाजेगा, बल्कि वो गोया पैगाम दे रहे थे। कहने वाले कहते रहो, अख्तर तो चला नहीं बल्कि चल दिया, दोनों में बहुत फर्क है। चला और है, चल दिया और है। कहने वाले कहते रहो, तबर्रा करने वाले करते रहो। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। तुम कहते रहो जो कहना है, लेकिन अख्तर कादरी चल दिया और फिर पैगाम भी दे दिया कि अगर तुम भी सच्चे कादरी रहोगे, गौसे आजम के गुलाम रहोगे, गौसे आजम की अकीदत का पट्टा गले में डाले रहोगे, तो ये भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पैगाम है कि खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर ताजुश शरिया दुनिया इस्लाम की उस मुनफरिद शख्सियत का नाम है जिसने अरबो अजम को अपने इल्म और अपने किरदार से मुतासिर किया है। दो बातें अर्ज करके मैं जल्दी से आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें हमें हुजूर मुहद्दिस कबीर से भी सुननी है और कायदे अहले सुन्नत शहजादे हुजूर ताजुश शरिया की भी मीठी बोल से हम अपने दिल को रोशन और मुनव्वर करने वाले हैं। आज अभी आपने उलमा के खिताब में सुना, मुर्तद हो रहे हैं, बेदीन हो रहे हैं, कोई वहाबियत की गोद में जा रहा है, कोई नजदियत की गोद में जा रहा है। मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा, मैंने पढ़ा है, आपने भी उलमा से सुना होगा कि हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जब विसाल का वक्त करीब हुआ, आपके इंतकाल का वक्त करीब हुआ, शैतान पहुंचा और उसने कहा, ए राजी, तूने जिंदगी भर पढ़ाया, तूने जिंदगी भर बहसो मुबाहसा किया, तुमने मुनाजरे की मजलिसें सजाई, क्या तूने जाना कि खुदा एक है? इमाम राजी ने फरमाया, बेशक खुदा एक है। शैतान ने कहा, दलील दो। इमाम राजी ने दलील दी, शैतान ने दलील को तोड़ दिया, उसका जवाब दिया और कहा, यह दलील कमजोर है, कोई और दलील दो, यह दलील सही नहीं है। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, उसने उसका भी जवाब दिया। आप उलमा से इस वाक़े को सुनते रहते होंगे। हजरत इमाम राजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेख तरीक़त, उनके पीरो मुर्शिद, उनके शेख कहीं मशगूल इबादत थे, अपने मुरीद की तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया, राजी क्यों नहीं कह देता मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? क्यों नहीं कह देता मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? जब मुर्शिद ने रहनुमाई की, इमाम राजी ने फरमाया, शैतान मेरी नजरों के सामने से हट जा, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। जो मुसल्लमा है उसमें आपको दलील की कुरेद करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके कोई आपसे कहे, 1000 दलीलें पेश करे, न जाने कितनी रिवायतें लेकर के वो आए,
तुमार लेकर के आए और ये अपनी मेज पर रख करके दिखाए कि सिद्दीक अकबर अफजल नहीं, ये फला अफजल हैं। आपको मैं पैगाम दे रहा हूं, जब कोई ये बात कहे तो आप कहिए मैं बगैर दलील को सिद्दीक अकबर को सहाबा में सबसे अफजल मानता हूं। आपको दलील देने की जरूरत नहीं है। जो चीज 1400 साल से मुसल्लम है उसमें हमें दलील की जरूरत नहीं है, हमें अपने अकाबिर का इरशाद ही काफी है। आपसे अगर कोई कहता है बरेली शरीफ मरकज नहीं रह गया, आप परेशान हो। आपसे अगर कोई कहता है बरेली शरीफ मरकज नहीं रह गया, आप परेशान हो जाते हैं। कभी इस मुफ्ती साहब से मसला पूछते हैं, कभी उस मुफ्ती साहब से जिक्र करते हैं। आंख बंद करके कह दीजिए हमें दलील देने की जरूरत नहीं है, बरेली हमारा मरकज था और है। आपसे अगर कोई कहे बरेली में अब इल्म नहीं रह गया, तो आपको कायदे अहले सुन्नत को पेश करने की जरूरत नहीं है, आपको फलां को दलील में पेश करने की जरूरत नहीं है। जामियतुल रज़ा के 2500 असातिज़ा जो इल्म और फजल की सौगात लुटाने में दिन रात एक कर रहे हैं, और कई एक मदारिस जहां पर उलमा बैठ करके तबलीग दीन कर रहे हैं, इशाअत दीन कर रहे हैं, इल्म को फैला रहे हैं, आपको एक एक करके पेश करने की जरूरत नहीं है। कह दीजिए हम बगैर दलील के उसे मरकज इल्म मानते हैं। आपसे अगर कोई कुछ कहे कि आप ताजुश शरिया को ऐसा कहते हैं, कह दीजिए कोई बात नहीं, हम बगैर दलील के उन्हें ताजुश शरिया मानते हैं, हम बगैर दलील के उन्हें वली कामिल मानते हैं, हम बगैर दलील के मरकज इल्म भी मानते हैं, मरकज अकीदत भी मानते हैं। आपको दलील में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि दलील देने के लिए तो मुनाजरीन हैं, ये उलमा हैं। जब ऐसे लोग मुनाजरीन और उलमा के सामने आते हैं तब पता चलता है कि 150 मुनाजरा करने का दावा करने वाला भी जाहिल मुतलक। एक बात, तो आप लोग तकलीद के मसले में उलझिए नहीं, ये तो 1400 साल से तय है, इसके लिए आपको दलील कुरेदने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके कह दीजिए 1200 साल की बेशुमार शख्सियतें, औलिया, अस्फिया, उलमा, अत्तिया, ये सब हनफी थे, हमें दलील देने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके हम तकलीद करते हैं और इमाम आजम के मुकल्लिद कहलाते हैं। आपको दलील देने की जरूरत नहीं है कि हम शाफई हैं तो ये दलील, हम्बली हैं तो ये दलील। आंख बंद करके कहिए, इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसी पर कायम रहिएगा। और दूसरी बात, हालात जब बहुत खराब हो रहे थे शुरू में, मैं हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में बैठा हुआ था, हाजिर था, हालात पर गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा हुजूर गुजरते हैं तो लोग जुमले सुनाते हैं, सफर में चलते हैं